اور وہی رہنی چاہیے. یعنی ان کو کسی قسم کی کنٹروورسی سے بالاتر ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں سیزرز وائف, دے آر دا سیزرز وائف آف سوسائٹی. جب سیزر وائف نیچے آئے گی تو سب معیار نیچے آئے گا. اچھا ہم اسما یہاں پہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اس وقت میمو گیٹ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, یہ اس کا کس حد تک جو ہے یہ اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا پائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ریکارڈ دکھا دیں کہ مجھے نوٹس ہوا ہو تو میں وکالت چھوڑ دوں گی. یہ آج ہم نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکایا ہے, ہم نے جا کے جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. خالد صاحب تو پھر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چور نالوں پنڈ کیوں کالی ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں, اپوزیشن تو یہ کہتی رہتی ہے. آج کی حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں ہے. اگر اس کیس کے پٹیشنر اللہ دیتا صاحب ہوتے تو میں دیکھتی کہ یہ کیسے مینٹینیبل ہوتا اور بغیر نوٹس کے کیسے ہوتا. میاں نواز شریف صاحب اللہ دیتا کی طرح پرائیویٹ کمپلینٹ کرتے. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. عاصمہ صاحبہ, یہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ طارق کھوسہ صاحب نے خود انکار کر دیا ہے اس کمیشن کا سربراہ بننے سے. تو یہ طارق کھوسہ صاحب جو ہیں یہ اتنے فیوریٹ کیوں ہیں دیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور موضوع شخص اس مسئلے کے لیے نہیں ملتا ان کو؟ اور پہلے اسٹیل مل کے لیے بھی کہا گیا تھا, بینک آف پنجاب کے اسکینڈل میں بھی تھے, تو یہ انکار بھی کرتے آ رہے ہیں یا ان کو حکومت نہیں لگانا چاہتی. اور اب انہوں نے کیوں انکار کیا آپ کے نزدیک؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو متنازع نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کا کام ہے وہ کہیں کہ جناب آپ بتائیں جو رسپونڈنٹس ہیں, اور آپ کوئی نام پیش کرے گورنمنٹ, ہم کس کو لگائیں, اور ان میں سے کوئی نام چن لیتے ہیں. مگر خود سپریم کورٹ کا فیوریٹ انویسٹیگیٹرز رکھنا صحیح بات نہیں ہے, چاہے وہ کتنے انٹیگریٹی کے ہوں. مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی انٹیگریٹی سے, طارق کھوسہ صاحب کی, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ مائی ریسپیکٹ فار ہم ہیز گون اپ, کہ جو چیز عدلیہ نے نہیں سوچی انہوں نے سوچی. اب دیکھیے یہ بابر اعوان صاحب تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی 3 تابوت ہم نے یہاں پنجاب سے بھیجے اور اب چوتھے تابوت کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ حکومت نے ایک قسم کی اتنی مایوسی کا اظہار کیوں کیا؟ آیا یہ سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے, یا بعض لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بابر اعوان کو اتنی اچھی لیگل ایڈوائس حکومت کو فراہم ہی نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ تو بابر اعوان صاحب بھی بتا سکتے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا, مگر میں بذات خود سمجھتی ہوں کہ میں اور یہ میں نے اپنی کلائنٹ کی بیوی سے بھی کہا ہے, آپ ذرا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں اس چیز سے, کیونکہ بذات خود ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ریاکشن جو ہوتا ہے وہ اوور ریاکشن نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ شیر آئے والی بات نہ اصل میں بھی میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کر سکتا ہوں. اس وقت خواجہ آصف صاحب لائن پہ, ہم جو آپ نے باتیں کی ذرا ان کا بھی جواب لے لیں. جی ضرور. السلام علیکم خواجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب آپ خیریت سے؟ خواجہ صاحب دعا جی آپ کی, اللہ کے فضل ہے. خواجہ صاحب یہی بات ہو رہی تھی, عارف نظامی صاحب بھی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. یہ جو میمو گیٹ کیس میں آپ نے عدلیہ سے رجوع کیا ہے, آپ خود بھی اس میں پٹیشنر ہیں, تو کیا واقعی کوئی آپ کی پارٹی کو عدم اعتماد ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ آپ پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے آپ عدلیہ سے رجوع کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب لیکن یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے زرداری صاحب اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, چاہے اس سے سسٹم تہہ بالا ہو جائے. تو اس میں سسٹم جو ہے نظامی صاحب عدالتوں سے تو نہیں سسٹم تہہ بالا ہوتا. جو ہے آپ خود بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑے کین سٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے. پاکستان میں جو ہے سسٹم تہہ بالا جو ہے ماضی میں 4 دفعہ عدالتوں کے ذریعے سے نہیں ہوا. تو اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ مثلا ہے کہ میاں صاحب نے جو یہ پٹیشن کی ہے اس کے ذریعے اس چیز کا تعین کیا جائے کہ کس پہ آرٹیکل 6 لگے, غداری کا مسئلہ ہو, اور اس کو چلتا کیا جائے. لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. دیکھیں ہم نے اگر آپ ہماری پٹیشن پڑھیں, ہم نے کسی کو ایکیوز نہیں کیا, ہم نے صرف پروب کے لیے کیا ہے. ایک بات.
दूसरी बात जो है कि अगर आप का पास कागज पेन स्लो जरा नोट करते जाएं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं ऑन रेलवे ने रेलवे के मुतल्लिक रिकमेंडेशन थी, जो रेलवे का आज हालात है वो सारे हालात की निशानदेही जो है स्टैंडिंग कमेटी ने आज से साल डेढ़ 2 साल पहले की हुई है। और याद सादिक साहब उस कमेटी के चेयरमैन है, वो आजकल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एलपीजी की मुतल्लिक जो है वो इंक्वायरी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी और पेट्रोलियम ने कंप्लीट की। वकास साहब जो है, वकास अकरम शेख साहब उनके चेयरमैन है, वो रिपोर्ट सबमिट हुई हाउस में, उस पर कुछ ना हुआ। उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूँ। आरपीपी का केस जो है वो भी रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कंप्लीट किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन दी, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ने कोई अमल दरामद न किया। मैं उसमें भी पिटिशनर हूँ। मेरी बात सुन लें। मैं पहले आपने एक सवाल किया, इत्मीनान से तहम्मुल से जरा जवाब सुने। मैं आपको सारी कमेटी गिनवाता हूँ। उसके बाद NICL की जो केस है वो कॉमर्स की कमेटी ने उसको कंप्लीट किया, इन्वेस्टिगेशन की, हाउस में रखा, एग्जीक्यूटिव ने कोई उस पर अमल दरामद नहीं किया। उसके बाद हज पे आ जाए, हज की कमेटी ने बल्कि एक स्पेशल कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई और वो सऊदी अरेबिया गई, पार्लियामेंटेरियंस की वो कमेटी थी, उसको वापस आ गए। आपका पॉइंट तो एस्टेब्लिश हो गया। आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जिस वक्त स्टैंडिंग कमेटीज की तरफ की से जो रिपोर्ट जाती है उसके बाद वो कुछ नहीं करते। पेशेंस नहीं है जो आप सुनने ना भाई, सुने चलें ख्वाजा साहब, मैं जरा ये कह रहा था कि ये पॉइंट हो गया, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये आपने भी रेज किया है, बाबर अवान साहब ने भी रेज किया और लोग भी रेज कर रहे हैं कि हम लोग जो है एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, ये पिछले 1.5 साल में जब हम मायूस होते रहे उस फोरम से, वो फोरम गैर फाल होता गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पार्लियामेंटेरियंस हैव कम टू द सुप्रीम कोर्ट। ये एक पिछले 1.5-2 साल से एक सिलसिला जो चलता आ रहा है, उसमें इस वक्त सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं, फैसल सालेयात भी हैं, साफी है। भाई साहब एक बात अब कर लूं, आपने एक्सप्लेन किया और बिल्कुल बजा तरीके से एक्सप्लेन किया। आपने पार्लियामेंट के गैर फाल होने की तकरीबन बात कर दी। आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। नहीं, मैं कंप्लीट बात कर रहा हूं। चले कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, फाल नहीं है। रेजोल्यूशन पे भी तो आए ना। आसमा जहांगीर कर दिया, आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। मेरे रेजोल्यूशन जो है जॉइंट पार्लियामेंट के अक्टूबर 2008 का इस साल वाला जॉइंट रेजोल्यूशन, जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, आपने भी की, पार्टी का अमल दरामद हुआ है। अच्छा भाई साहब, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। उनका ये कहना है कि जुडिशरी जो है वो मॉरल अथॉरिटी लैक करती है। फिर उन्होंने ये बात की कि न्यूट्रल परसेप्शन जो है ना जुडिशरी का, वो नजर नहीं आता। जुडिशरी एक रास्ता दिखा रही है, एक तो रिलीफ दे दिया, दूसरा फिर वो एक ममासलत कायम करने की कोशिश कर रही है वाटरगेट स्कैंडल में और मेमोगेट स्कैंडल में। आप मतलब एक तरफ आप पार्लियामेंट को बिल्कुल गैर फाल समझ रहे हैं, आसमा साहबा जो हैं उनके ख्याल में जुडिशरी जो है मैं आपको थोड़ा सा सरमद साहब दुरुस्त करूं। मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी में मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। जी ठीक है, मगर दूसरी बातें आपकी सही है। मैंने ये नहीं कहा कि मॉरल अथॉरिटी नहीं है, मैंने कहा होनी चाहिए। हाँ भाई साहब, चलें, ये तो बड़ी मैसिव किस्म की करेक्शन आ गई है सरमद साहब आपकी स्टेटमेंट। मैसिव करेक्शन नहीं, मतलब मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा है तो लैक नहीं करती इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी, उन्होंने कहा है मेरी बहन ने कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मॉरल अथॉरिटी लैक नहीं करती। आसमा साहब, आप वाकई समझती हैं कि पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो चुकी हुई है? आप ख्वाजा साहब से मुत्तफिक हैं इस बारे में? देखें, मैं ये बिल्कुल मुत्तफिक, ख्वाजा साहब मेरे बड़े भाई या छोटे भाई या भाई हैं बिल्कुल, और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि हमारे बेटों की इतनी दोस्ती है कि वो रोज़ इकट्ठे होते हैं। मैं ख्वाजा साहब को क्या कह सकती हूँ, मगर जब हम इस किस्म की बात करें कि पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई है, तो हम फिर ये कह रहे हैं कि हम एज सिटीजन्स इररिलेवेंट हो गए हैं। सिविल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी सिविल एग्जिस्टेंस इररिलेवेंट हो चुकी है। और मैं बड़ी माजरत के साथ, नाउ नॉट एज अ लॉयर, मगर मेरे भी एक कोई सियासी अपब्रिंगिंग है। पहले हम दावत देते थे, आपको याद होगा हमेशा, कि मुल्क में ख़राबी हो रही है, फ़ौज आ जाए। अब हम दावत देने लगे जी कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा, हम सब बोझ जो है अदलिया के ऊपर डाल दें। तो ये मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन को ब्रिंग डाउन करेगा। इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब बहुत वेट डाल दे तो वो केव इन कर जाती है। तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है
पार्लियामेंट आप समझते हैं नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप भी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसमें लाएं कैपेसिटी। हमारी बार एसोसिएशन में एक ज़माने में नहीं थी, हमने अंदर काम किया, हम कहे जी बार एसोसिएशन तो है नहीं, तो चलें हम जाके अब जजों को ही कहते हैं कि वही हमारे इलेक्शन लड़वाएं। तो फिर हमारी इंडिपेंडेंस कहाँ जाती, हमारी जमहूरी निज़ाम कहाँ जाता बार का। दूसरा मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, खालिद साहब बुरा ना मानिएगा, आपके मेरे दरमियान कोई वो नहीं है एनिमोसिटी या कोई ऐसी बात, मैं आपसे सिर्फ एक सियासी कुछ कदरे रखने वाले शहरी के हैसियत में, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर बुरा वक्त आया था, लोग ट्रीजन लगे हुए थे, उस वक़्त हमने आवाज़ उठाई, बहुत कम लोग थे, कम से कम मैंने तो आवाज़ उठाई कि ये क्या बातें हो रही हैं, और इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उसमें किसने एक्चुअली ट्रीजन की। जो सबसे ज़्यादा ट्रीजन शोर कर रहे थे, ट्रीजन तो एक्चुअली उन्होंने की। अब आप मुझे बताएं कि ट्रीजन का क्या मकसद है। ट्रीजन के कई मकासद हो सकते हैं। क्या ये ट्रीजन नहीं है कि हमारी एयर बेसिस दे दी जिन्होंने और हमें बताया तक नहीं, तो वो क्या ट्रीजन नहीं है? मुल्क का एक हिस्सा दे दिया, मुल्क की फ़ज़ाई कुव्वत दे दी किसी को, वहाँ पे तो कोई नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। मैं इसलिए ये नहीं बात करी कि मैं चाह रही हूँ कि आप हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, मैं कतन इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि परसेप्शन ये बन रहा है कि ये सारा खेल जो है, ये जो एक्चुअल कुव्वतें पीछे बैठी हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो करा रही है, और मियाँ नवाज शरीफ की इतनी अच्छी एक साख बनी हुई है, ये सियासी गलती ना करें, क्योंकि ये साख उनकी रहनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनकी ये साख रहेगी। वो कभी एस्टैब्लिशमेंट प्रो नहीं होंगे, मगर ये उसका तासुर देती है। जी खालिद साहब जवाब देंगे इसका? ये आज हमने अदलिया का दरवाजा खटखटाया, हमने जाके GHQ के गेट के ऊपर नहीं खड़े हुए, ठीक, या हमने किसी जो माताहत आईनी अदारों के माताहत जो अदारे हैं जिसमें फौज शामिल है, उनका दरवाजा नहीं खटखटाया, उनको आवाज नहीं दी कि आप आए, आप इंटरवीन करें। वील बी द लास्ट क्या हम कतई तौर पे बल्कि हम बुलवक बनेंगे उसके आगे कोई इस किस्म की बात हुई, लेकिन हम एक आईनी अदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है जो है हमने तो जरदारी साहब को या हुसैन हक्कानी साहब को एक्यूज नहीं किया, हमने तो कहा है कि प्रूव की जाए, अगर वो कोई भी इन दो हजरात के अलावा भी कोई शख्स जो है वो इसका मुर्तकब पाया जाता है, तो वो उस पे आर्टिकल 6 जो है वो बिल्कुल हमारी प्रेयर है कि अगर कोई शख्स इसका मुर्तकब पाया जाता है तो आर्टिकल 6 के तहत उसकी कार्रवाई की जाए। जी खालिद साहब थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक बात मैं पूछ लूं जरा सरमद साहब, तो फिर तो मुझे यूं लग रहा है कि सॉरी माफ कीजिएगा, बड़ी माजरत से मुहावरा कह रही हूँ, आपकी पिटीशन मैंने भी पढ़ी, अभी फिर हमने सबने मिलके पढ़ी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे खालिद साहब। तो फिर मुझे यूं लग रहा है कि चोर नालों पंड क्यों काली हो गई।